Hare Krishna, good evening, welcome all of you all. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Welcome all of you all for our Thursday evening Bhagavatam class. So we are discussing Prahlad Maharaj story, and we have already come to the fag end. So we'll take a fast recap of what we did last week before we go ahead. So already Prahlad Maharaj is saying, भक्ति करना है तो बचपन में करो, भक्ति करना है तो बचपन से करो, क्योंकि जवानी में भक्ति या बुढ़ापे में भक्ति होगी नहीं। इसका कारण बताया, उम्र तो बहुत छोटी है, उसके बावजूद अगर भक्ति करनी है तो उसके लिए मन भक्ति में कर भगवान पे लगाना चाहिए। पर मन क्या होता है, बस जो मोह और माया का जो पाश है उसमें बंद कर व्यक्ति, बच्चा, परिवार, अपने छोटी सी दुनिया में इतना रम जाता है that he loses his entire interest in God and never does any devotional service, and thus whole human life, the human birth, which is the very source of devotion. If a person in human birth cannot do devotion, in no other birth he can do devotion. सिर्फ और सिर्फ मनुष्य धर्म में व्यक्ति भक्ति कर सकता है, और उस योनि में आके अगर उसने भक्ति नहीं की तो उससे बड़ा कोई मूर्ख, उससे कोई बड़ा जीवन का व्यर्थ गवाने वाला और कोई व्यक्ति नहीं. Person is wasting his human life and doing all things of sense gratification. परिवार हो वो भी sense gratification, family हो वो भी sense gratification. Why? One should be aware that at the time of death all this will be taken away from him, and who is going to come with him is God. और उसकी भक्ति, उसकी प्राप्ति के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बाकी जो चीज छोड़ के जाना है उसके लिए पूरा प्रयास हो रहा है. That is the biggest foolishness a person can have. So after telling all this, Prahlad Maharaj gives an example of a silkworm. एक रेशम का कीड़ा होता है, अपने मुंह से रेशम बनाता है और उसी में लिपट लिपट के अंत में इतना घना उसका thread around the worm is so strong that he cannot come out. And पूरा जीवन व्यक्ति सिर्फ दो इंद्रियों को खुश करने के लिए पूरा जीवन बिता देता है, और वो दो इंद्रियां हैं, एक जीवा, दूसरा उपस्थ. द टंग एंड द जेनिटल्स, उसी को खुश करने के लिए पूरी आयु कम पड़ जाती है. क्यों कम पड़ती है? Because whole life is busy satisfying these two, and these two senses can never get satisfied. How many tons of food we all have eaten? Do you have any idea? Even at a rate of 1 kilo food, total food consumed per person per day, in 365 days, it is 365 kgs. Multiplied by, let's say, an average of 50 years, it goes in tons. And after eating so many tons of food, have we ever got, or can we ever say, no, it's enough, I'm thankful to you, enough, मेरा पेट भर गया है, मेरा जीवा खुश हो गया? नहीं. इसके लिए कहते हैं ना, दिल मांगे मोर, दिल हमेशा और बेहतर वैरायटी कुछ खाने के चक्कर में घूमता रहता है. Similarly, genitals, they are also never sated. That is why people not only indulge in sexual activity, but they indulge in illicit sexual activity. And that is the worst thing, the worst sin a person can do. A person who betrays his character, his own self. It is said, one who loses his character, he is lost in this world. अपनी पहचान खो देता है, सिर्फ इंद्रियों का गुलाम बनकर रह जाता है. A slave of his senses. जैसे वो इंद्रियां के है वैसा वो नाचता है, वैसे वो करता है. वैसे व्यक्ति का क्या फायदा इस दुनिया में? What is the use of such a person who has totally surrendered himself to the senses? So it's better that person
becomes more firm and determined in his life in performing devotional service and achieving the ultimate goal of getting out of the cycle of birth and death. It looks funny. We tell every week, this is our goal of life. But the problem is, as soon as the class is over, Maya is so strong. We start believing that everything else on this earth is more important than achieving God. And we drift away slowly into sense gratification activities. Activities which can only give us subtle sense gratification. There are two types of sense gratification. One is gross and one subtle. Gross is जो हम इंद्रियों से इंद्रिय वस्तु लेते हैं वो ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन, और एक सूक्ष्म है, सूक्ष्म which is by mind, that is name, fame, power, adoration. वाह वाह, मेरी वाहवाही हो रही है, मेरा लोग क्या कहते हैं, मान प्रतिष्ठा कर रहे हैं, सब लोग मुझे वाहवाही कर रहे हैं. That is also a form of sense gratification. भले उसमें इंद्रियों का, डायरेक्ट इंद्रियों का, पंच इंद्रियों का काम नहीं है, मगर मन खुश हो जाता. अगर कोई एक्टर बाहर आए और उसको सामने कोई फैन ना दिखे तो उसको बहुत दुख लगता है, अरे कोई नहीं है मुझे, क्यों? That is also a form of sense gratification. So, being engrossed in these sense gratifications, life is lost. And that is why Prahlad Maharaj is giving this elaborate explanation. And on that, the children ask, भाई तुमको ये ज्ञान कहाँ से मिला? Who explained to you and how is it possible for you to hear? तो उसने पहले बोल दिया कि नारद मुनि ने मुझे ज्ञान दिया था. मतलब नारद मुनि ने आपको ज्ञान कैसे दिया और आपने कैसे सुना? तब प्रहलाद महाराज कहते हैं, when Father Hiranyakashipu went to the Mandrachal mountains to execute severe austerities, in his absence, the demigods, the head of the demigods, this Indra, came there with an idea demons. जब हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत गए थे तपस्या करने के लिए, तब इंद्र अपने देवताओं के साथ आए थे, तभी सब राक्षसों को मार दिया. सब राक्षस भाग गए, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के राक्षस इधर उधर भाग गए. तब इंद्र ने उनकी मां यानी कि हिरण्यकशिपु की पत्नी कयादु उसको बंदी बना लिया और उसको लेके जा रहे थे. जैसे वो लेके जा रहे थे उस समय नारद मुनि आए वहां, और नारद मुनि ने बोला कि भाई कहाँ लेके जा रहे हो उस औरत को, छोड़ दो इसको, कि वो गर्भवती थी. तब इंद्र ने कहा, इन द वूम ऑफ दिस वुमन द वाइफ ऑफ डेमन हिरण्यकशिपु इज द सीड ऑफ अ ग्रेट डेमन. एक बड़े राक्षस का पुत्र उसके कोख में है. उसके जन्म होने तक उसको हमारे पास ही रहने दो, ताकि वो हमारे निगरानी में अपना बच्चे को जन्म ले. तब नारद मुनि कहते हैं, अरे इसके कोख में जो बच्चा है ना, बड़ा भगत है, विष्णु भगवान का बड़ा भगत है. एंड therefore you will not be able to kill him. आप उसको मार नहीं पाओगे, भले वो असुर का, राक्षस का बेटा है, फिर भी आप उसको नहीं पार. इंद्र ने तुरंत उसकी मां को छोड़ दिया और नारद मुनि अपने आश्रम में इस प्रहलाद की मां को लेके आए. और जब वो गर्भवती थी तब उसके गर्भ को शांति से, मतलब सेफ्टली रखने के लिए वहां उसको रख दिया और वहां रोज कथा सुना. इसके लिए हमेशा हमको साधु संतों के साथ रहना चाहिए, कि साधु संत हमेशा सत्संग की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं. लोग सत्संग में आने के लिए खिचखिचाते हैं और कहाँ जाके बैठते हैं? किटी पार्टी है, किटी पार्टी, क्लब्स, फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं और क्या करते हैं? बच इसकी बुराई, उसकी बुराई. अब मेरी बहू अच्छी नहीं है, मेरी सास अच्छी नहीं है, मेरा ये ऐसा है, मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं, सब एक दूसरे की बुराई करते बैठते हैं वहां. और करके कुछ फायदा है? कुछ फायदा नहीं. और यही अगर व्यक्ति सत्संग में बैठ जाए
साधु के संग में बैठ जाए, भगवान के लीलाओं के बारे में कुछ सुन ले, अचीव समथिंग by attending by listening to the leaders of the Lord, the activities of the Lord, definitely you are benefited. You are benefited to such an extent that you are totally out of this cycle of karma. The law of karma is working. जब आप किसी की अच्छाई या बुराई कर रहे हो तो उस वक्त भी लॉ ऑफ कर्मा काम कर रहा है। मगर आप ये सब छोड़ के सिर्फ भक्ति पे फोकस करोगे, भगवान के लिए फोकस करोगे, तब आपको सबसे बड़ा फायदा क्या है? ना आप कर्म के बंधन में बंधे हो, और तभी आपको सिर्फ भगवान की बातचीत याद करने की वजह से अकर्म हो रहा है। भगवत गीता हमको सिखाता है 3 कर्म। अच्छे कर्म, अच्छे कर्म का फल क्या है? हमको स्वर्ग मिलेगा। बुरे कर्म का फल क्या है? हमको नरक मिलेगा। और तीसरा कर्म कौन सा है? वह अकर्म। ना अच्छा कर्म ना बुरा कर्म। ना अच्छा करो, स्वर्ग में जाओ, अपनी फायदा उठाओ, और जैसे अपने पुण्य खत्म हो जाएंगे वापस इस धरती पे आना पड़ेगा। नरक में जाओ, वहां पे भी अपने पापों का पश्चाताप करो, तकलीफ उठाओ, और फिर वापस इस धरती पे आ जाओ। क्या जिंदगी इतने जन्मों तक हम बस यहाँ से स्वर्ग, यहाँ से नरक, यहाँ से स्वर्ग, यहाँ से नरक, और वापस दोनों जगहों से हमको वापस इसी धरती पे आना। क्या फायदा? कभी ऊपर कभी नीचे। You don't achieve anything tangible in this. So if you want to achieve something tangible, you have to get out of the cycle of bhakti, and then you will get the kingdom of God. But अगर भगवान के पास जाना चाहते हो, मुक्ति पाना चाहते हो, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना चाहते हो, तो आपको नए कर्म नहीं करना। भगवान कहते हैं कि भाई जैसा आप मेरी भक्ति करते हो, आपके पुराने जितने भी संचित कर्म है सब जला दूंगा, सब जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जब कर्म का कोई गठरी नहीं रहेगा तो आपको जन्म लेने की जरूरत ही नहीं। मगर क्या होता है, अक्सर हम लोग इस जीवन को जीते जीते कर्म का एक नया गठरी बनाते, चाहे वो सुख भोगते वक्त या दुख भोगते वक्त। और दोनों वक्त, जब आप सुख भी भोग रहे हो और दुख भी भोग रहे हो, उस वक्त सबसे बड़ा बात यह है कि आपने एक नया कर्म का गठरी बनाया है, और उस कर्म की गठरी को खत्म करने के लिए आपको वापस जन्म लेना पड़ेगा। इसके लिए भगवत गीता में कहा गया है कि भाई अकर्म करो, ना अच्छे कर्म करो ना बुरे कर्म करो, और अकर्म करने से नए कर्म जमा नहीं होंगे, और अपना पुराना कर्म जो है, जो संचित है, वो भक्ति से खत्म हो जाएगा। भगवान ने क्या कहा भगवत गीता में? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे सारे पाप खत्म करूं। पर हम लोगों को ये है ना कि भाई जीवन में थोड़ा और सुख भोग लूं, इस धरती पे थोड़ा और सुख भोग लूं, और इस धरती पे सुख है क्या? इज देयर एनी हैप्पीनेस? देयर इज ओनली सैडनेस। दुख के अलावा इस दुनिया में और कुछ भी नहीं। सपोज निखर, tomorrow you go to Switzerland to watch those nice beautiful mountains and scenery and everything, whatever they show on TV and movies. You will be able to enjoy that? Yes, Yeah. can enjoy, right? And Yes. imagine that you are constipated and you are not well, and you are standing in front of the same beautiful scenery. Can you enjoy? No. Suppose you are fully well. आपने एक दिन वो पहाड़ देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 4 दिन देखा, हफ्ता देखा, महीना देखा, कितना दिन देखा? You मन get भर bored, जाएगा। right? You get bored, जी। right? Yeah. No, you go to hill stations. मैं फैक्ट आप लोगों को फैक्ट बता रहा हूँ। आप हिल स्टेशन चले जाओ, वहां पे अगर किसी को बोल दिया ना बम्बई से आए हैं, तो वो लोग बोलते हैं
अच्छा, बॉम्बे से आए हैं, अमिताभ बच्चन को देखते रहेंगे, शाहरुख खान को देखते रहेंगे। और आपकी बॉम्बे में नया गाड़ी कौन सा है, लेटेस्ट गाड़ी कौन सा है? अरे भाई, हम लोग हमारा परेशानी दूर करने के लिए हिल स्टेशन आए, ताकि हमको थोड़ा कुछ नया हवा पानी मिले। और यहाँ आके आप क्या कर रहे हो? मुंबई की खबर बता रहे हो। उनको लगता है बॉम्बे में मजा है, वहां मजबूरी से बैठे हैं। और हमको क्या लगता है, हम यहाँ दुखी हैं, वहां बड़ा आनंद मिलने वाला है। अरे वहां के लोग ही आनंदित नहीं है तो हम कहाँ कैसे आनंदित होंगे? कोई भी हिल स्टेशन चले जाओ, वहां का लोग बोलेगा यार बॉम्बे से है, बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा, अमिताभ बच्चन पड़ोसी रहेगा आपका। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। मुंबई में आओ, ज्यादा झोपड़पट्टी है, घर कम है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर ट्राइंग टू फाइंड हैप्पीनेस एट एवरी जोन एंड एवरी पॉसिबल पॉइंट, बट अंडरस्टैंड देयर इज नो हैप्पीनेस इन दिस दुखालय। बट दुखालय में सुख मिले ना मिले, उसको उस सुख के पीछे भागते भागते हम क्या कर रहे हैं? कर्म जमा। उस सुख को प्राप्त करने के लिए 100 झूठ 100 गलत कार्य सब कर रहे हैं, ताकि हम सुखी हो जाएं। और सुखी कोई होता है क्या? कोई सुखी हो सकता है? कोई नहीं। क्यों? सुख है ही। कोयले के खान में अगर आप सफेद पत्थर ढूंढ रहे हो, तो आपसे कोई बड़ा बेवकूफ हो सकता है। कहानी मैंने पहली बार कई बार बोला था, पर अब वापस बता। एक बार एक बुढ़िया घर के आंगन में कुछ ढूंढ रही थी। तो लड़का जा रहा था, बोला अरे भैया क्या ढूंढ रही हो? बेटा मेरा कान की बाली गिर गई, मैं वही ढूंढ रही हूँ। लड़का बोला भैया मैं ढूंढ दूं? हाँ ढूंढ दे बेटा। तो ढूंढ के देने लगा, ढूंढने लगा। जैसे ढूंढ रहा था, थोड़ा देर में लड़का को कुछ मिला नहीं, तो लड़के ने पूछा मैया को, ओ मैया याद कर, कहाँ को गिराया तूने तेरे कान की बाली को? तो 2 मिनट सोचा, हाँ अब याद आया। 3 महीने पहले जब मैं दिल्ली की लाल किला देखने गई थी ना, वहां पे गिर गई थी मेरी कान। तो लड़के को आया गुस्सा, क्या मैया क्या बोल रही हो? 3 महीना पहले दिल्ली के लाल किला में अपना कान की बाली घुमाए हो, और यहाँ आके ढूंढ रही हो, अब मिलेगा क्या? हंसना मत। हम सब भी वही। क्या हमारी खुशी किसी मॉल में, किसी थिएटर में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी क्लब में गुम हो गई थी? फिर भी बार बार वहां जाके ढूंढ क्यों रहे हैं हम? हर टाइम ये सोचते हैं कि ये पिक्चर देखने से हमको खुशी मिलेगी, ये रेस्टोरेंट में खाना खाने से हमको आनंद मिलेगा, हाँ ये मॉल में जाके ये कपड़े खरीदेंगे तो खुशी मिलेगी। कभी नहीं, कभी नहीं। यू कैन नेवर बी हैप्पी। हैप्पीनेस इज अ परसेप्शन, and you want to be happy, the first principle of getting happiness is be satisfied. Whenever a person is satisfied, he is happy. When a person is not satisfied, he can never get happy. ये अपना क्या बोलते हैं, सूत्र है, खुशी पाने का सूत्र। एंड एक्सपेक्टेशन इज द मदर ऑफ सैडनेस। जब भी आप एक्सपेक्टेशन रखें, आपको दुख ही दुख मिलने वाला है। तो इस तरह से जब हिरण्यकशिपु जब गए थे, इंद्र ने उसको उठा के लेके आया था, मगर नारद मुनि ने उस बच्चे को, अपने माँ और बच्चे दोनों को बचाया। और नारद मुनि उसको बार बार भगवान के गुण लीला के बारे में बता रहे हैं। फिर सॉरी फिर because of long duration of time that had passed, and because of her being a woman and therefore less intelligent, my mother had forgotten all these instructions. But the great sage Narada blessed me, and therefore I could not forget them. देखो ये बहुत बड़ी बात है। गुरु से ज्ञान मिलना तो एक बात है, गुरु से ज्ञान मिलने के बाद उनका आशीर्वाद मिलेगा, तभी वो ज्ञान हमारे बुद्धि में रहेगा, नहीं तो वो ज्ञान हमारे बुद्धि में नहीं है। इसके लिए आप लोगों को कर्ण का कहानी याद है? कितने लोगों को कर्ण का कहानी पता है? कर्ण झूठ बोलकर परशुराम जी के पास गया था,
अस्त्र शस्त्र विद्या सीखने के लिए। पूरी विद्या ले ली उसने वहां पे। सारे विद्या लेने के बाद एक दिन जब कर्ण बैठा था और गोद में परशुराम जी ने सिर रखकर सो रहे थे, तब अचानक एक कीड़े ने उसके पैर को काटने लगा। उसको लगा भले मेरा पैर काट रहा है, खून निकल रहा है, चलेगा, कम से कम मेरे गुरुजी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब गुरुजी ने उठ के देखा, परशुराम जी ने उठ के देखा, तब देखा कि उसका पूरा पैर खून से लथपथ था। तो तुरंत शक आया, ये ब्राह्मण पुत्र नहीं हो सकता, ये जरूर किसी और वर्ण का है। उसने तुरंत पूछा, तो कौन है? उसने बोला, मैं सूत पुत्र हूँ, कर्ण हूँ, सच बताया। तब परशुराम जी ने उसको श्राप दिया। क्या श्राप दिया? जो भी विद्या तूने सीखा है, जिस दिन जब उसको उसकी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ेगी, उस दिन तू इसको भूल जाएगा। और वही हुआ महाभारत युद्ध में। उसको वो ज्ञान, जब कर्ण अर्जुन सामने खड़ा था, उसको विद्या याद नहीं आ रही। क्यों? विद्या पाना तो बात की बात है, विद्या पाने के बाद अगर गुरु का आशीर्वाद, गुरु की कृपा न हुई, तो वो विद्या आपके दिमाग में से निकल जाएगी। You will forget the knowledge. The most important thing is one has to remember that he should not only get the knowledge from a spiritual master, but also the blessings. Prahlad Maharaj gave him the spiritual knowledge. The classmates rejected the materialistic instructions given by the teacher Sand and Amarka. Chand and Amark ने जो सिखाया था, जो राक्षसी विद्या थी, जो सिखाया था, वो इन्होंने छोड़ दिया और प्रहलाद महाराज की दिए हुए शिक्षा को पालन करने लगे। वो लोग भी भक्त बन गए और भगवान का नाम लेने लगे, भगवान के गुण लीला सुनने लगे प्रहलाद महाराज से। जब चंड नंबर को पता चला, तुरंत भाग के गया और राजा हिरण्यकशिपु को जाके बता दिया। अब हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आया और अब सोच लिया कि इस पुत्र को मैं खुद ही मार दूं। ये पुत्र कौन था? ये वही पुत्र था प्रहलाद, जिसको मारने की कई कोशिशें की हिरण्यकशिपु ने, यहाँ तक अपनी बहन होलिका के गोदी में तक बिठा दिया और उसको आग में बिठा दिया। होलिका को वरदान था कि उसको आग कुछ नहीं करेगा, मगर भक्त जब उसके गोद में बैठ गया, वो भी जलकर खाक हो गई और प्रहलाद को सांपों के कुएं में डाला गया, पहाड़ से नीचे ढकला गया, नदी में डुबाने की कोशिश की गई, पर कुछ भी नहीं हुआ। और उससे डर के जब इसको कुछ हो नहीं रहा था, तब इसी हिरण्यकशिपु ने सोचा कहीं ये मेरे मृत्यु का कारण ना हो जाए। और जब अब षंड और अमरक ने बताया कि खुद तो भक्ति कर ही रहा है, बाकी असुर के बच्चों को भी भक्ति करवा रहा है, तो हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आया और उसने सोच लिया अब इसको मैं खत्म। उसने तुरंत प्रहलाद को बुलवाया और प्रहलाद को बुला के पूछा, एक सवाल पूछा, by whose power has a rascal like you become an imprudent that you appear fearless and overstep my power to rule you? किसके बल पे तू इतना निर्भय बनकर मेरे ऊपर दबाव डाल रहा है? पहले चीज उसको डाउट आया, पूरा ब्रह्मांड उससे डरता है सिवाय उसके बेटे। और पूरा ब्रह्मांड डरता क्यों है? ये पूरा ब्रह्मांड भगवान का भक्त नहीं। ये जितने भी देवी देवता भी है ना, वो भी भगवान के भक्त नहीं। भगवान को तभी याद करेंगे जब उनको कोई तकलीफ में हो या उनको कोई प्रॉब्लम हो। मगर यही लोग जब सुख में रहते हैं, वो भगवान को याद नहीं करते। ये सिर्फ देवताओं के लिए नहीं, अपने लिए भी है। अगर हम भी जीवन में हमारे सुख के समय में भगवान को याद नहीं करें, तो दुख के समय याद करके क्या करना है आपको? दुख भी आपका ही कमाया हुआ है ना, आपके बुरे कर्म का फल है दुख, और आपके अच्छे कर्मों का फल है सुख। दोनों समय आपको भगवान को याद करना है। इसी के लिए दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कृष्णा कॉन्शियसनेस।
कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? हर वक्त भगवान को अपने स्मरण में रखना। अगर हमने भगवान को हर समय स्मरण में नहीं रख पाए तो क्या फायदा? One should be Krishna conscious in all times, be it be happy times or be it be bad times. मगर ये देवता अभी क्या करते हैं, जब सुख में है, आनंद में है, भूल जाते हैं भगवान, और जब जब दुख में आते हैं तब याद करते हैं। इसके लिए वो भी हिरण्यकशिपु से डर रहे थे। सब लोग हिरण्यकशिपु से इसके लिए डर रहे थे क्योंकि वो लोग भगवान के आश्रित नहीं थे। One has to take the shelter of God to be fearless. And if you don't take shelter of God, you lead a fearful life. कई बार भक्ति में भी लोग डरते रहते हैं। अरे प्रभु जी, मैंने वो पूजा नहीं किया, ये माला नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये देवी का, हमारा कुल देवी का पूजा नहीं किया हमने, ये नहीं किया। अरे आपने अगर भगवान के आश्रित हो गए तो भगवान आपके दोस्त। हम भगवान के आश्रित होना नहीं, हम खुश हैं, बस भगवान हमारा टाइम टू टाइम हमारा काम करते रहे बस। और आश्रित होने का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरेंडरिंग टू गॉड? हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि आप आश्रित हो? कैसा पता चलेगा कि आप भगवान के आश्रित हो? यू आर सरेंडर टू गॉड और यू आर नॉट सरेंडर टू गॉड, आपको कैसा पता चलेगा? बोलिए। प्रभु जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। अगर हमने फुल्ली सरेंडर कर दिया है तो हमें किसी बात की चिंता नहीं होगी, क्योंकि भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं और जो हमारे लिए बेटर है वही भगवान पता करेंगे। कैसे चले आप भगवान के आश्रित हो? वो तो विपत्ति आएगी तब देखा जाएगा। आपको हाँ पता कैसे चले कि मैं आश्रित हूँ या नहीं? प्रभु जी कहने से हाँ हाँ, एवरीवन, नोबडी आस्क, कैन आई से? अनम्यूट किया, यू से। प्रभु जी जब हमें ये पता होगा कि हमें भगवान पे भरोसा है, आपको भरोसा है, भगवान पे भरोसा है, ठीक है। यस निखर, वेयर आर यू? मैं नेट कमजोर था इसलिए मैंने वीडियो ऑफ करा है, तो मैं हाँ सोच रही थी आंसर। हाँ। देखो मुझे ऐसा लगता है जब हम बाकियों से एक्सपेक्टेशंस बंद कर देंगे कि एक्सपेक्टेशंस बंद करेंगे? अच्छा, सरेंडर्ड व्यक्ति एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। नहीं नहीं, सिर्फ भगवान से करेंगे, बिकॉज वी हैव सरेंडर टू द गॉड। हाँ, तो तो भगवान से बाकी चीज एक्सपेक्टेशन भगवान से कर सकते हैं, दुनिया से क्या एक्सपेक्टेशन? दुनिया तो धोखा ही देती है। ये तो सीखने पर पता चलता है ना। अपने घर वाले भी धोखा देते हैं, अपने ही अपने को ज्यादा धोखा देते हैं। परायों से कोई खतरा नहीं होता, अपनों से खतरा होता है। यस आशु माता जी, आपको कैसा पता चलेगा कि आप आश्रित हो? मतलब मुझे जब हम भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे और निस्वार्थ उनकी पूजा करेंगे, मतलब कोई भी चीज में मन में इच्छा ना रख के। हम्म, मन में इच्छा न रखें। भगवान की सेवा करना भी तो एक इच्छा है। इच्छा रहित व्यक्ति हो ही नहीं सकता। भगवान के लिए मैं आज अच्छा भोग बनाऊं, भगवान के लिए कुछ अच्छा माला बनाऊं, ये भी एक इच्छा है। इच्छा रहित कैसे रह सकते? तो ये एक्चुअली ये सोचना ही गलत। यस, कोई और बोलना चाहेगा? हरे कृष्णा हाउ प्रभु विल जी। यू नो दैट यू आर सरेंडर्ड? सुजाता माता जी बोलिए, आपको कैसा पता है कि आप आश्रित हो या नहीं? हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ अ, हरीश। तो प्रभु जी ऐसा है कि मारे भी राखे भी जो इच्छा उनकी भगवान की। मारो भी राखो भी जो इच्छा। हम्म, ठीक है, एक हद तक सही है। और क्या अब क्या अपेक्षित? हरे कृष्णा प्रभु जी। जो भी मिले जैसा भी हो उसमें हाँ संतुष्ट, जो भी मिले जैसा भी लाइफ में चल रहा है उसमें ही संतुष्ट होना, ज्यादा वो ये तो ना कॉम्प्रोमाइज वाला जीवन होगा। कॉम्प्रोमाइज यानी सेटिस्फाइड रहना, कंटेंट रहना जो भी है लाइफ में।
ठीक है, कंटेंटमेंट इज गुड, बट हाउ विल यू नो यू आर सरेंडर्ड? प्रभु जी कोई सर व्यक्ति को 2 दिन खाना नहीं मिला तो भूखा सो जाता है, दैट डजंट मीन ही हैज बिकम सरेंडर्ड, राइट? हाँ, बोलिए बोलिए माता जी। Prabhu ji, we should when the person starts doing only those things which are favorable to Krishna conscious, and he Yes, very good. rejects all those things which are not favorable to Krishna. Yes, very important point. What is good for, or what will make God happy, do those activities, and reject those activities which God does not like. अन्य अभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि आवृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमम। भगवान क्या कह रहे हैं? अन्य अभिलाषित, बाकी सब अभिलाषा छोड़ दो, सिर्फ भगवान को खुश करने की अभिलाषा होनी। हम लोग क्या करते हैं? दोनों अभिलाषा रखते हैं, ये अभिलाषा और वो अभिलाषा नहीं। भगवान को सेवा, भगवान को खुश करना और भगवान की खुशी में अपना खुशी ढूंढना, भगवान से विरुद्ध या भगवान को छोड़कर। जैसे कई बार हम हमेशा बोलते हैं, भगवान क्या भोजन खाते हैं? बिना प्याज लहसुन। अब उसके लिए, भगवान के लिए बिना प्याज लहसुन का भोग लगता है। अगर आप बोलेंगे नहीं प्रभु जी, मुझे बाहर जाकर है ना वो प्याज वाला पाव भाजी खाने में बड़ा आनंद, आज बारिश बहुत है, वो प्याज का पकौड़ी खाने में क्या आनंद ही अलग। इसका मतलब क्या है? आप भले 100 माला जप लो, आपके अंदर भक्ति है। लेकिन कैसे? अरे भाई, जब किसी से प्यार करते हो तो उसकी पसंद की चीज करते हो या अपनी? Am I making sense, Ashu Mata ji, Nikhar? Get this point very clear. जब तक आप वो कार्य नहीं करोगे जो भगवान को पसंद है, और जो भगवान को ना पसंद है वो कार्य छोड़ना पड़ेगा। आप बोलेंगे नहीं प्रभु जी, थोड़ा बहुत तो, ये थोड़ा बहुत नहीं। सरेंडर मीन्स 100%. There is no 50% surrender, 70% surrender, no 90% surrender. Only and only 100% surrender ही चलेगा। और 100% surrender मतलब 100% जो भगवान को पसंद है वो कार्य। इसके लिए क्या कहा गया? अन्य अभिलाषित शून्यम, 0। अन्य अभिलाषित ज्ञान कर्मादि और कृष्णेन कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण को जो पसंद है वो कार्य करो, उसी को भक्ति उत्तमम कहा गया है। उसमें भी आपका जो कार्य कर रहे हो ना, उसमें ज्ञान कर्म, अरे ये करने से आज मैं राधा रानी को अरबी का सब्जी खिलाऊंगा, बहुत खुश हो जाएंगी और मुझे वरदान दे देंगी, मेरा धंधा चलने लगेगा, मेरा बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, मेरी बेटी का ब्याह हो जाएगा। ये मत सोचो भाई, याद रखो सब लोग अपना अपना कर्म लिखवा के आते हैं। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो नहीं हो रहा है वो भी अच्छे। कोशिश अगर करनी है तो भगवान की प्राप्ति में कोशिश करना, बाकी सब भगवान अपने आप देखते हैं। तो surrender is to be considered to be the topmost. That's why it is said, हिरण्यकशिपु को गुस्सा क्यों आया था? क्योंकि प्रहलाद महाराज अगर एक बात बोल देते, हिरण्यकशिपु की जय, उनका सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाता था, इतनी मार पिटाई खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मगर उसको क्या, प्रहलाद महाराज को कभी तकलीफ हुआ? जब भी प्रहलाद महाराज को किसी भी यात्रा में डाला गया तब उन्होंने भगवान को पुकारा, हे प्रभु आ जाओ, मेरे को तकलीफ हो रही है, देखो मैं आपके लिए आपका नाम छोड़ नहीं रहा हूँ, इसके लिए मेरे पिताजी मुझे तकलीफ दे रहे हैं और आप मुझे इतने तकलीफ में देख रहे हो, आओ मुझे बचाओ। एक बार भी प्रहलाद महाराज ने बुलाया नहीं, जरूरत ही नहीं, भक्त को बोलने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज भगवान सदैव आपके साथ है। अब चीटिंग भी करते हो तो भगवान देख रहे हैं, हमेशा याद रखो। भक्ति में अगर कोई भी चीटिंग कर रहे हो, भगवान नाम लेने में या भगवान के नियमों को पालन करने में, तो भगवान हमेशा आपको देख रहे हैं।
एक नहीं दो आंख से देख रहे हैं भाई क्या कर रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं ना, मैं आपका प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर तीनों जानता हूँ, हर एक व्यक्ति का जानता हूँ, सबका एक एक का रिकॉर्ड है उनके कंप्यूटर में। हम सोचेंगे यार क्या, हम भूल जाएंगे, भगवान कभी नहीं भूलेंगे। छोटा सा अच्छा कार्य भी नहीं भूलेंगे, छोटा सा बुरा कार्य भी नहीं भूलेंगे, दोनों का हिसाब बराबर रखेंगे, उनका कंप्यूटर में कोई मिस्टेक नहीं होती। तो इसके लिए प्रहलाद महाराज निडर थे, उसको कोई डर नहीं हुआ था हिरण्यकशिपु से, क्योंकि वो शरणागत थे। और यही बड़े बड़े देवता डरे हुए थे, यहाँ तक कि इंद्र भी डरा हुआ था। क्यों? कि वो भगवान को जानते हुए भी उन्होंने भगवान की शरणागति। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो प्रहलाद महाराज इस सवाल का जवाब देते हैं, भाई आप पिताजी, आप जो कह रहे हो ना कि मेरा शक्ति का स्रोत क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ माय स्ट्रेंथ, he says the source of my strength of which you are asking is also the source of yours. आपका ताकत जहां से आ रहा है वहीं से मेरा ताकत आ रहा है। ऐसा नहीं कि मेरा ताकत कहीं और से आ रहा है और आपका ताकत कहीं और से आ रहा है। Indeed, the original source of all kinds of strength is only one. भगवान 7वें अध्याय में, 8वें में, 9वें में, 10वें में, सभी अध्याय में भगवान क्लियरली कह रहे हैं भगवत गीता में कि भाई प्रसोम अपसुकौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य हो, हर चीज का तेज, हर चीज का सुगंध सब मेरे वजह से है। प्राणी का हर चीज जो श्वास ले रहा है वो भी मेरे वजह से ले रहा है। तो हम सब के अंदर ताकत अगर है, क्षमता है, तो वो भगवान की वजह से। हिरण्यकशिपु ने पूछा, वेयर इज योर सुप्रीम गॉड who is all pervading, and if he is everywhere, then why for me in this pillar? हिरण्यकशिपु ने बहुत बड़ी ऊंची आवाज में पूछा, भाई तुम्हारा जो विष्णु है, विष्णु का मतलब क्या है? हर अणु में जो भगवान है उसके लिए विष्णु कहा गया, विश्व के हर अणु में है। भगवान जो सब जगह व्याप्त है, यहाँ क्यों नहीं है? और अगर है तो मेरे सामने क्यों आ नहीं रहे? या इस पिलर में है, इस खंबे में है? आई शैल नाउ सर्व योर हेड फ्रॉम योर बॉडी। अब मैं तुम्हारा शरीर और सर अलग कर दूंगा। नाउ लेट मी नो योर मोस्ट वर्शिपेबल गॉड कम्स टू प्रोटेक्ट यू। आई वांट टू सी इट। अब मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा भगवान, हिरण्यकशिपु को कैसा विष्णु बहुत तुच्छ लग रहा, तुम्हारा भगवान कहां से आता है? भागवत में एक बहुत अच्छी कहानी आती है, जब बलि महाराज कहते हैं, बलि महाराज कहते हैं, वामन देव कहते हैं बलि महाराज की कहानी कि जब हिरण्यकशिपु ताकत से इतना ताकतवर हो गया, जब बलि महाराज से कहते वक्त तब ये कहते हैं कि भाई जब बहुत ताकत बढ़ गई थी उसकी और सब जगह उधम मचाने लगा, वो यहाँ तक कि वैकुंठ तक चला गया था, कौन है वो विष्णु, उसको मैं खत्म कर दूंगा। और भगवान सोचे अब तो उसका मारने का समय आया नहीं। नाउ ही इज गोइंग टू बी, he has to be kept alive, क्योंकि जब तक प्रहलाद महाराज नहीं आएंगे तब तक इसको मारूंगा नहीं। तो इसके लिए क्या करूं, कहाँ छुप जाऊं? भगवान भी छुप गए। भगवान कहाँ छुप गए? कहते हैं हिरण्यकशिपु के हृदय में जाके छुप गए। ये स्वयं भगवान कह रहे हैं, वामन देव कह रहे हैं कि भाई मैं आपके हृदय में छुप गया, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना सब जगह भगवान को ढूंढेगा, अपने हृदय में कभी भगवान को नहीं ढूंढेगा। ये एक राक्षस की प्रवृत्ति है। राक्षस भगवान का दिया हुआ हर चीज खाएगा, हर चीज को इस्तेमाल करेगा, पानी पिएगा, हवा लेगा, अगर भगवान के वजूद के बारे में प्रश्न उठाएगा, कहाँ है भगवान, मेरे सामने आने को बोलो। अरे उसका दिया हुआ हवा खा रहा है, उसका हवा दिया हुआ पानी पी रहा है, उसका दिया हुआ भोजन खा रहा है, बट पूछ रहा है भगवान कहाँ पे, जैसे तुम्हारे नौकर हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं वहां छुप गया था और मैं तुरंत आ सकता था,
उसके पीछे एक राज है, आगे बताऊंगा. So then from within the pillar came a powerful sound. Sorry, Hiranyakashipu took a sword and got up from his royal throne and with great anger struck with his fist against the column. उसने तलवार हाथ में लिया और जोर से अपनी मुष्टिका से एक जोर से एक प्रहार किया उस खंबे के. खंबे तो बहुत है, एक खंबे पे उसने प्रहार कर, और जैसे उस पे प्रहार किया फ्रॉम विदिन द पिलर उससे एक गस्त आवाज, बहुत आवाज आया, as if पूरा. and on hearing the sound the other leaders of the demons were afraid. राक्षस के अदर दूसरे जो राक्षस थे, बड़े बड़े राक्षस थे, उनके अंदर भय घुस गया. None of them could find the origin of the sound in the assembly. उधर कोई भी उस आवाज का स्रोत को पता नहीं कर पाए. बहुत डरावना और गड़गड़ाहट वाला आवाज आया. ये बहुत बहुत ही जरूरी श्लोक है. 7.8.17 सत्यम विधातुम निजभृत्य भाष्यता व्यापितम च भूतेषु अखिलेषु च आत्मनः. He's saying satyam vidatum. So he's saying adrishya ati adbhuda rupam. Adrishya ati adbhudam rupam udbhavam stambe sabhyam na mृगम ना च मनुष्यनाम. कहते हैं सत्यम विधातुम, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट. भगवान को जरूरी नहीं था उस खंबे से बाहर निकल. भगवान कहीं से भी निकल सकते थे, उसके हृदय से भी बाहर आ सकते थे. मगर क्या कह रहे हैं शुकदेव गोस्वामी कि प्रहलाद महाराज के विश्वास और प्रहलाद महाराज के सामने जो प्रश्न पूछा था उसने, क्या इस खंबे में है? तुम्हारे विष्णु तो सब जगह है ना, सब ताकत का स्रोत है ना, सबका ताकत उसी से आ रहा है ना, दिखा तुम्हारा वो विष्णु को. और जोर से उस खंबे को मारा. तो बोलते हैं सत्यम विधातुम निजभृत्य भाष्यता, क्योंकि मेरा भक्त ने ये बोला है कि मैं इस खंबे में हूं, उसको सही साबित करने के लिए उस खंबे से भगवान बाहर. और कैसे आए? आधे मनुष्य और आधे सिंह. सिंह के रूप में, आधे मनुष्य और आधे के सिंह के रूप में से उस खंबे से बाहर आए. और उस खंबे से बाहर आने का वजह आचार्यगण यही कह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रहलाद महाराज के वचनों को सत्य कर. भगवान का कृपा देखो, भगवान की दया देखो. क्योंकि प्रहलाद महाराज ने बोला था हाँ इधर है उधर है, वहां से निकले. वो किसी और खंबे से भी आ सकते थे, वो आएंगे नहीं तो भी मार सकते थे हिरण्यकशिपु, फिर भी वो आए सिर्फ और सिर्फ अपने भक्त. उन्होंने स्टार्टिंग में, अगर आप लोगों को याद हो, जब देवता गए थे विष्णु के पास मदद मांगने के लिए, तब विष्णु ने क्या कहा था? किसी को याद है? लेट मी सी, किसको याद? यस पूजा माता जी, रिमेंबर? Please, can you repeat the question? I was just typing that. I said what did, when the devatas went to Hiranyakashipu to beg for help to protect them from that Hiranyakashipu, that Rakshas, that time God had told something to the devatas. Yes, What he had told you? Prabhuji, the Lord said that when the right time comes, when Hiranyakshipu will start troubling his son Prahlad Maharaj, Yes. and when the right time That comes, time I will come. that time I will come. You will have Yes, to wait. that day he will trouble my devotee, pure devotee. इसका पीछे बहुत अर्थ है, समझ लो. जब तक भगवान के असली भक्त को तकलीफ नहीं होगी ना, भगवान नीचे नहीं आएंगे. पांडव जब द्रुत क्रीड़ा में थे, हालांकि सब देवता पुत्र थे. भीम वायु पुत्र था, अर्जुन इंद्र का पुत्र था, युधिष्ठिर महाराज यमराज के पुत्र थे,
सब देवताओं के पुत्र थे। और जब उनका हालत खराब हो गया, हार गए, बेइज्जत होके खड़े थे, तब क्या भगवान आए? पर जब भगवान का असली भक्त द्रौपदी, उस पर अत्याचार हो रहा था, तब तुरंत भगवान जब उसने जब पुकारा भगवान को, भगवान तुरंत आ गए, साड़ी के रूप में आ गए और साड़ी का दुकान खोल दी। दुशासन थक गया साड़ी खींचते खींचते। कुछ लोग कहते हैं फर्स्ट ऑनलाइन शॉपिंग था द्रौपदी ने किया। तो कहने का मतलब क्या है? याद रखना, जब तक कोई भक्त के ऊपर अत्याचार न हो, दैट इज व्हाई लॉर्ड सेज पवित्राणाय साधूनां नाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में आऊंगा, पर पहले किसके लिए? एक तो धर्म की स्थापना करने, और दूसरा पवित्राणाय साधूनां। जब जब मेरे साधुगण, साधु मतलब जो मेरे परायण भक्त हैं, उन पे कोई भी तकलीफ या अत्याचार होगा, तब मैं उनके पास आऊंगा। तो हियर वी कुड सी, जो प्रहलाद महाराज के ऊपर जैसे अत्याचार हुआ, बोला आज उसने तय किया कि मैं प्रहलाद महाराज को मार दूंगा। हिरण्यकशिपु ने तय किया और तुरंत भगवान को चैलेंज किया, तुरंत भगवान बाहर आ गए। और कैसे? स्तंभे सभ्या न मृगम न मनुष्य नाम, ना पूरा शेर है ना पूरा मनुष्य है। और उस परिस्थिति में हिरण्यकशिपु सोचने लगा, ये कौन सा भाई, कौन सा जानवर है, ये कौन सा कृत्य है, ये क्या आधा मनुष्य और आधा शेर है? और अपने आप मन मन में बोलने लगा, अपने आप से बोलने लगा, लॉर्ड विष्णु possesses great mystic power has made this plan for me to kill me, but what is the use of such an attempt? तभी भी सोचा, अरे बड़ा भगवान है, बड़ा मायावी है, अपने आप को इतना अकलमंद सोच रहा है कि मुझे मारने के लिए ऐसा प्लान बनाया उसने, मगर मुझे मार पाएगा? कोई फायदा नहीं। जैसे ये सोच रहा था, हिरण्यकशिपु स्विफ्टली अटैक्ड नरसिंहदेव विद हिज क्लब। जैसे उसने अपना गदा उठाया, उससे जोर से भगवान को मारने की कोशिश। नरसिंहदेव ने एक हाथ से उस गदे को पकड़ लिया। The Lord captured Hiranyakashipu and placed the demon on his lap. ज्यादा बातचीत नहीं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं, सीधा बाकी हिरण्याक्ष के साथ जो बरादेव लड़ रहे थे ना, बहुत सालों के तक लड़ रहे थे। कभी ऐसे ऐसे गिर जाते, कैसे वो, कभी वो गिर जाता, ऐसा लग रहा था बड़ा ड्रामा चल रहा। जैसे पिक्चरों में होता है ना, हीरो और विलन का मारामारी होता है, तो ऐसा लगता है अरे हीरो तो पिट रहा है, कभी कभी कैसे जीतेगा। वैसे हिरण्याक्ष के साथ बरादेव लड़ रहे थे, पर यहाँ हिरण्यकशिपु के साथ उसे ज्यादा टाइम नहीं मिला। क्यों? वहां पे किसी भक्त को तकलीफ नहीं दी, मगर यहाँ पे उसने प्रहलाद को तकलीफ दी थी। तुरंत उसको उठाया, अपने जंघे पे रखा, दरवाजे दोनों अंदर ना बाहर, बीच के दरवाजे के बीच में खड़े रहते हुए उस राक्षस के छितड़े उड़ा दिए अपने नखून से छितड़े उड़ा। नरसिंहदेव decorated with a garland of intestine taken from the Hiranyakashipu's abdomen। कहते हैं उन्होंने उसकी आंतड़ी बाहर निकाल दी और अपने गले पे माला की तरह पहन लिया। Narasimhadev Lord Narasimha, being very angry and finding no contestant to face his power and opulence, then sat down in the assembly hall and on the excellent throne of the king. Because of fear and obedience, no one could come forward to serve the king directly, serve the Lord directly. कहते हैं कि भगवान तुरंत जाके उस सिंहासन पे जाके बैठ गए। क्रोध में थे, कोई आगे आने की हिम्मत नहीं कर। ब्रह्मा, शिव, गंधर्व सब आके वहां पे अपना प्रेयर्स, अपने उनका स्तुति किया और उनको भगवान को शांत करने की कोशिश की।
Nobody was ready to approach the Lord. कोई नहीं जाने को, सब लोग डर रहे थे भगवान के सामने जाने के लिए, इतने उग्र रूप में थे। यहाँ तक कि लक्ष्मी देवी उनकी पत्नी, वो भी डर रही थी उनके सामने जाने। वो भी बोली मैं नहीं जाऊंगी, ऐसा उग्र रूप मैंने कभी अपने भगवान का नहीं देखा है, अपने पति का नहीं देखा है। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज को, भाई प्रहलाद महाराज आप जरा देखो तो जरा शांत करो। तब प्रहलाद महाराज बड़ी स्तुति करते, तब अच्छी स्तुति करते हैं तो नरसिंहदेव खुश हो जाते। एंड he puts his hand on Prahlad's head, अपना हाथ से प्रहलाद महाराज के सिर पे हाथ। And because of his being personally touched by the Lord, Prahlad Maharaj immediately achieved Brahma Gyan, spiritual knowledge. इतना छोटा सा बालक था, ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता था, उसके अंदर इतने ज्ञान नहीं थी, और क्योंकि भगवान ने उसके ऊपर हाथ रखा, तुरंत उसके अंदर ब्रह्म ज्ञान आ गया, उसके अंदर बोलने की वो वाणी, वो ताकत सब आ गया। Then, thus, he offered his prayers to the Lord in full spiritual knowledge and full devotional ecstasy. पूरे जोर से उसने भगवान की स्तुति की, और नरसिंहदेव की स्तुति के बाद नरसिंहदेव शांत हो गए। Here I am very much pleased with you. This is my pastime to fulfill the desire of all living beings, and therefore you may ask from me any prediction that you desire to be fulfilled. यहाँ पे भगवान पूछ रहे हैं, तुझे क्या चाहिए, मैं तेरी पूरी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा, जितनी भी तेरी इच्छाएं मैं सब पूरी कर दूंगा, जो वर चाहिए मांग ले मुझसे। ये मेरा पास टाइम है, ये मतलब पास टाइम को, ये मेरी लीलाएं हैं। मैं जब भी मुझे वक्त मिले, मैं अपने भक्तों के साथ लीला करता हूँ, और उनको जो इच्छा हो इच्छाओं को पूरी करूँ। When he heard that the prediction offered by Lord Nrsimhadev, he considered them to be the impediment on the path of devotion. ये है भक्त का लक्षण। जब भगवान ने वर दिया, या वर देने के लिए तैयार थे, तो भक्त क्या सोचता है, अरे अब वर में मांगेंगे क्या। चलो, अगर आप लोगों में से किसी के सामने भगवान आ गया, बोला क्या वर चाहिए बोल, तो क्या वर मांगोगे आप? आशु माता जी, आपके सामने आ गए भगवान, तो क्या मांगोगे आप? प्रभु जी भक्ति। हाँ, भक्ति। भक्ति, वाह। जो करनी है वो आप मांगोगे? और चाहिए प्रभु जी जो। नहीं, भक्ति तो आपको करनी है, भक्ति भगवान नहीं दे सकते, भक्ति आपको करनी है, आपको पापड़ बेलने हैं। भगवान भक्ति, भगवान ने तो भक्ति दे दी। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, भक्ति का बीज दे दिया, गुरु दे दिया, कृष्ण आ गए, और क्या चाहिए? भगवान क्या कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित है, कौन भाग्यवान है जीव, कौन सा जीव है जो भाग्यवान है? गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, जिसको गुरु और कृष्ण मिल गया, उसको और क्या चाहिए? और उस हाथ में क्या मिला है? भक्ति लता बीज, भक्ति की बीज दे दी, उसको सींचना आपका काम है, भगवान का काम नहीं। एक भक्ति का बीज गुरु देता है, जो बीज है भक्ति का, जो बीज है, सीड जो होता है ना, वो गुरु दे देता है। उसके बाद उसको सींच कर बड़ा करना भक्त का काम है, भक्त का काम, भगवान का काम नहीं। ये सुजाता माता जी है, भगवान सामने आ जाएंगे तो आप क्या मांगेंगे? माता जी बोलेंगे पूरा लिस्ट है, एक पूरा आइटम थोड़ी मांगूंगी, पूरा 101 आइटम का लिस्ट है। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी अभी क्या मांगूंगी मेरे को भी नहीं मालूम। जरा जोर से बोलिए। हाँ मतलब क्या मांगूंगी मेरे को भी समझ नहीं आएगा वैसे तो। मुझे फोन करेंगे आप? हाँ क्या आपको कुछ क्या मांगना चाहिए आपसे पूछूंगी पहले। फोन तो नहीं करूंगी, पर अभी आपसे जैसे जैसे सीख रहे हो तो समझ आएगा कि क्या मांगू। अच्छा, इतना देर से कह रहा हूँ कि मांगना कुछ नहीं है, जितना दिया है काफी नहीं है क्या अपने पास? सत्संग दिया, भगवान ने अपने आप को दे दिया है, आपको भक्ति आपको करनी है, मांगना क्या है? अगर कोई मांग के मांग सकते तो हमारी मांग क्या है? भौतिक चीजें।
और ये गलत सोच है कि भक्ति मिल जाएगी। भक्ति मिलेगी नहीं, भक्ति आपको करनी है। करनी पड़ेगी। Bhakti is a process which you have to do. It is not to be something which can be given to you. And when it comes to मांगना, गाड़ी, बंगला, बीवी, बच्चा, ये सभी मांग सकते हैं। और ये सब चीज क्या है? भक्ति के राह में रोड़े हैं। They are impediments in the form of devotion. इसके लिए प्रहलाद महाराज बहुत अक्लमंद है। कहते हैं ना, कृष्ण भक्त बड़ा ज्ञानी, उसने तुरंत बोला कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए। He said, kindly do not tempt me with these illusions. का मुझे लालच मत देना इन चीजों का, because I am very much afraid of material conditions and I desire to be liberated from materialistic life. हम लोग, भगवान अगर आ गए नीचे धरती पे, सोना चांदी हीरा मोती यही दे सकते हैं, और ये सब चीज यहाँ की है। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। आत्मा के लिए आध्यात्मिक चीज की जरूरत है, और आध्यात्मिक चीज आध्यात्मिक दुनिया में मिलेगा, इस भौतिक दुनिया में नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपके चरणों की, आपके पदकमलों की आश्रय लेना चाहता हूं। माय लॉर्ड, बहुत अच्छा शब्द यूज किया है। आप जो है ना, वरद ऋषभ कहते हैं। वरद ऋषभ मतलब जो वर देने में माहिर है, उनसे ज्यादा बेहतर कोई वर दे नहीं सकते। ओ भगवान, आप तो वरद ऋषभ है। इफ यू वांट टू बेस्टो अ डिजायरेबल बेनेडिक्शन ऑन मी, अगर वाकई में आप मेरी कुछ इच्छा पूरी करना चाहते हो, आई प्रे टू योर लॉर्डशिप दैट within the core of my heart there should be no material desire. मेरे मन में कोई भी भौतिक इच्छा नहीं आनी चाहिए। किस चीज का वर देना? क्या वर मांगा है प्रहलाद महाराज कि मुझे एक ऐसा वर दो कि उस वर से मुझे कोई भी भौतिक चीज मांगने की इच्छा, वर मांगने की इच्छा ही ना हो। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए डिवोटी। भगवान आगे पहले कहते हैं, कपिल भगवान कहते हैं, मेरे भक्त जो है ना, उनको मोक्ष की भी जरूरत नहीं। मोक्ष लेके क्या करेंगे? जहां पे है वो मुक्ति है। जब भक्ति कर रहे हो तो आप मुक्त हो। कोई 2 घंटे जो आप माला कर रहे हो, मुक्त हो। जब आप भगवान की पूजा पाठ कर रहे हो, भगवान के लिए भोग बना रहे हो, मुक्त हो। जो राखो, जो इच्छा तुम्हार, मारो भी मारो, राखो भी जो इच्छा तुम्हार, तो आप मुक्त हो। तो फर्स्ट थिंग इज प्रहलाद महाराज की तरह होना चाहिए। भाई मटेरियल डिजायर्स कुछ भी नहीं रखना चाहिए। सो तब प्रहलाद महाराज से बहुत खुश हो गए भगवान, और उन्होंने बोला कि भाई तुझे लंबी आयु देता हूं, और तेरी इंद्रियां जो है ना वो बहुत स्ट्रांग रहेगी। क्यों? कई लोगों को लंबी आयु रहती, मगर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर सब आने के बाद क्या खाओगे, क्या एंजॉय करोगे? कमर दर्द, नी रिप्लेसमेंट, ये सब के बाद आप क्या भागोगे, क्या करोगे? तो भगवान को पता है क्या देना है। न मांगने पे एक मनु इतनी आयु, लंबी आयु दी, और साथ में इंद्रिय भी ऐसे दिए ताकि वो उसको भोग सके, और ऑल्सो फॉलो डिवोशन, एंड फाइनली एंड में तू मेरे पास आ जाए। मतलब क्या है? आम के आम, गुठलियों के भी दाम। कहावत सुनिए ना, आम के आम, गुठलियों के भी दाम। भगवान ने बोला मेरे पास आएगा, ये तो फाइनल है, और उसके पहले भक्ति कर और भौतिक सारे सुख भोग ले, वो भी एक लंबी आयु में अच्छे इंद्रियों के साथ। तो प्रहलाद आस्ट एक और छोटी सी इच्छा जाहिर करना चाहिए। बोला क्या है? आस्क, प्रहलाद महाराज आस्क्ड, I ask you for one benediction. I wish that he is excused for these sinful activities. मेरे पिताजी जो हैं, उन्होंने बहुत बुरे कर्म किए, प्लीज आप उनको माफ कर दें। उनके गलत कार्य के लिए उन्होंने आपके बारे में बुरा कहा है,
को माफ कर दे रहा है। हे प्रहलाद, मोस्ट प्योर, ओ ग्रेट सेंटली पर्सन, अरे तेरे जैसा भगत नहीं मिलेगा मुझे। तेरे पिताजी तो पहले ही मुक्त हो चुके हैं, हैज बीन प्यूरिफाइड among the 21 forefathers in your family, because you were born in this family, the entire dynasty has been। बहुत जबरदस्त बात यहाँ भगवान कह रहे हैं प्रहलाद महाराज। पहला चीज तो मुक्त हो ही रहा है जीवन के अंत में, तेरे पिता है वो क्या 21 पीढ़ी शुद्ध हो गई। और 21 पीढ़ियां क्यों शुद्ध हो गई? क्योंकि एक भक्त उसके जीवन में, उसके घराने में या उनके फैमिली में पैदा हुआ। तो कहते हैं अगर आप एक व्यक्ति किसी परिवार में भक्त बन जाता है, भक्त मतलब शुद्ध भक्त, तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती। इसके लिए जब भी आप लोग भक्ति करते हो ना, या सत्संग में बैठते हो या क्लास में आते हो, मंदिर आते हो, सबसे ज्यादा खुश कौन होते हैं पता है? आपके पिता, आपके फोरफादर्स बहुत खुश हो जाएंगे। क्यों? बेटा कुछ भक्ति कर रहा है, शायद ये हमको जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल दे और हमको मोक्ष दिला दे। हमने तो नहीं पाया है, मगर वो मोक्ष में प्राप्त कर लेता है तो साथ में हम 21 पीढ़ी कर जाएंगे। Thus Narada explained to Shishupal how Shishupal and others have attained salvation, though they were equal to the Lord। भगवान से वो दुश्मनी रखे थे, फिर भी वो मिला। इस तरह से हमको समझना चाहिए प्रहलाद महाराज का स्टोरी जो है कि हम लोगों के लिए एक बड़ा मार्गदर्शन है, हमको कई सारी चीजें सिखाता है। Okay, with this I'd like to close today's class. Anybody has got any doubts, questions, can ask.